This is part 2 of the video Balance of Payment Adjustment Policies. In this video, we will correct balance of payment equilibrium with the help of monetary policy, fiscal policy, and mix of both policies. First, suppose with monetary policy. As we discussed in the first video, any monetary policy that aimed at increasing the money supply and availability of capital, that is called expansionary monetary policy or easy money policy. On the other hand, if the aim of the monetary policy is to decrease money supply or to decrease availability of capital, that policy is known as contractionary monetary policy or dear monetary policy. And in the first video, we concluded that if we want to correct balance of payment deficit, then we have to reduce expenditure. The first point is monetary policy to correct balance of payment deficit. There is deficit. Government will try to reduce expenditure, and to reduce expenditure, government will adopt contractionary monetary policy. For example, as in this diagram, with contractionary monetary policy, money supply decreases. Contractionary monetary policy के साथ money supply कम हो जाएगी, and thus LM shifts leftwards from LM1 to LM0, और ये जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम बन जाएगा. We can draw this diagram again. This is income and rate of interest. IS is only one curve in this diagram because government is changing money supply. So the effect of the monetary policy is on LM. So IS is 1. This is important to note that in this diagram IS is 1. Suppose this is IS. IS1. And suppose this is LM1. Then initial equilibrium is at E1. This is the domestic equilibrium where income is
y1 and rate of interest is r1. The BOP line is, suppose this is positive line, suppose this is the BOP line, this is BOP. In this diagram, there is equilibrium in the domestic market but not in foreign market, and E1 point is below BOP line, so E1 point shows deficit, and to make general equilibrium in both domestic as well as foreign market, government reduces money supply. With the reduction in money supply, LM shifts leftwards from LM1 to LM0, and new equilibrium is achieved at this point. Suppose E0, this is suppose Y0, and R2. तो ये बन गई हमारी न्यू डायग्राम, सेम डायग्राम. What we say, with contractionary monetary policy, money supply decrease हो गई, and thus LM shifts towards left from LM1 to LM0, and BOP equilibrium is achieved at E0. अब LM क्यों शिफ्ट हुई? मनी सप्लाई डिक्रीजेस, मनी सप्लाई कम हो गई. रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज, मनी सप्लाई कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया. डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फॉल्स, लेवल ऑफ इनकम फॉल्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इनकम कम हो गई. एंड इम्पोर्ट्स डिक्रीज, तो इम्पोर्ट्स भी कम हो गए बिकॉज ऑफ इनकम. एंड दस ट्रेड डेफिसिट रिड्यूसेस and therefore the BOP deficit eliminates. तो मनी सप्लाई कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इनकम कम हो गई, इंपोर्ट्स कम हो गए. एंड डेफिसिट, यू नो, डेफिसिट मीन्स इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स. तो हमने इंपोर्ट्स को कम करना है, इनकम कम हो गई और इंपोर्ट्स कम हो गई, तो डेफिसिट जो था वो खत्म हो गया. ऑन द अदर हैंड, अगर हम कैपिटल अकाउंट में देखें, व्हेन मनी सप्लाई डिक्रीजेस, जैसे ही मनी सप्लाई कम हुई, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट राइजेस, तो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा हो गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इंडियंस ने सपोज बाहर से कैपिटल लेनी स्टार्ट कर दी, या बाहर के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ
हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल इनफ्लो राइजेस, तो कैपिटल इनफ्लो बढ़ गया, एंड दस कैपिटल अकाउंट डेफिसिट रिड्यूसेस, देयरफॉर द बीओपी डेफिसिट एलिमिनेट्स। तो इसमें हमने देखा कि करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट खत्म हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो उसमें ये डेफिसिट खत्म हो गया। दिस वाज टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। सिमिलरली वी विल करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस थ्रू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले ये LM1 है, E1 पॉइंट है, लाइन BOP इज दिस, E1 इज अबव BOP, तो ये सरप्लस है। इसमें है गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है, LM शिफ्ट्स राइटवर्ड्स, तो इक्विलिब्रियम यहाँ दोबारा बन जाता है। अगेन IS इज 1, IS एक ही है, ओनली LM शिफ्ट्स, इसको भी हम दोबारा बना सकते हैं। Suppose it is Y or this is suppose IS1 and this is suppose LM1, equilibrium, domestic equilibrium is at this point, E1, this is income, rate of interest, suppose it is Y1 and R1. The BOP line is, suppose here, suppose this is the BOP line, positive slope, and E1 point shows there is domestic equilibrium, money market and product market, but not international equilibrium, not foreign market equilibrium. फॉरेन मार्केट इक्विलिब्रियम अगर बनाना है तो यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दिस पॉइंट E1 पॉइंट is on the above of BOP line, so this point shows surplus, BOP surplus। तो उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की। उससे क्या हुआ, जो LM है, LM राइट साइड शिफ्ट हो गया फ्रॉम LM1 टू LM2। तो उससे क्या हुआ, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम बन गया एट पॉइंट E2, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो ठीक हो गया। दिस इज सपोज Y2
and this is R0. तो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट के उल्टा हो गया। विद एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई इंक्रीजेस, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, एंड दस LM शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट, LM जो है वो राइट शिफ्ट हो गया फ्रॉम LM1 to LM2, एंड BOP इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट E2। क्यों? अगर हम पहले की तरह करंट मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दोनों में देखें, व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीज, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इनकम ज़्यादा हो गई, एंड इम्पोर्ट्स जो थे वो कम हो गए, एंड दस ट्रेड सरप्लस रिड्यूसेस, इम्पोर्ट कम होने से जो सरप्लस थी वो ख़त्म हो गई, इम्पोर्ट्स ज़्यादा होने से, सॉरी, इम्पोर्ट बढ़ गए, इम्पोर्ट ज़्यादा होने से जो हमारी सरप्लस थी वो ख़त्म हो गई, एंड देयरफॉर POP सरप्लस एलिमिनेट्स। ऐसे ही अगर हम कैपिटल अकाउंट में देखें, मनी सप्लाई बढ़ने से जैसे ही डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, कैपिटल का आउटफ्लो बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो कैपिटल आउटफ्लो नेगेटिवली रिलेटेड है, एंड दस कैपिटल अकाउंट सरप्लस जो थी वो ख़त्म हो गई, एंड बैलेंस ऑफ सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस जो थी वो ख़त्म हो गई और फॉरेन मार्केट का इक्विलिब्रियम बन गया। तो हम अगर इसके बेस पे कंक्लूजन करें, डेफिसिट है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड इसका उल्टा सरप्लस है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दीज आर द बेसिक कंक्लूजन्स। In this heading, we will study how to correct balance of payment disequilibrium through fiscal policy। और एक कंक्लूजन हमारा कॉमन ही है कि अगर डेफिसिट है, जैसे सपोज हम डेफिसिट ठीक करेंगे तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम करना है। Fiscal policy refers to the deliberate changes made by the government in its expenditure and taxation policies or both। तो फिस्कल पॉलिसी हम किसको बोलते हैं? जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में, टैक्सेस में या दोनों में कोई चेंज लेके आती है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो दो तरह की ये हो सकती है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसमें बढ़ाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड। इसके उल्टे जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी होती है उससे डिमांड कम हो जाती है। A country adopting an expansionary fiscal policy increases government spending। तो अगर हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाएं तो गवर्नमेंट इसमें क्या चेंज करती है? एक्सपेंडिचर और टैक्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है एंड लेवल ऑफ टैक्स कम हो जाता है। गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है या फिर दोनों काम किए जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंशनरी पॉलिसी मीन्स
एक्सपेंशनरी पॉलिसी तब बनेगी जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दे, या फिर टैक्स कम करे, या फिर दोनों काम करे। अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्शनरी देखें, पुट्स कट्स डाउन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रेजेस द लेवल ऑफ टैक्सेशन और बोथ। कॉन्ट्रैक्शनरी में दोनों, या तो फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी या टैक्स बढ़ा देगी, या फिर दोनों काम होंगे। हम अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो ठीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो इस डायग्राम को हम दोबारा बना सकते हैं। इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस डायग्राम में अगर हम देखें, जो LM है, LM इज ओनली 1, क्योंकि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के साथ एक्सपेंडिचर बढ़ाकर या कम करके IS को चेंज करेगी। LM इज 1। तो हम पहले LM बनाते हैं। सपोज दिस इज LM 1। जो BOP है, सपोज BOP है यहां पर, दिस इज सपोज BOP लाइन। BOP 1 एंड जो IS है, IS initially suppose it is at this point, IS 1, और ये हमारा हो गया डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम E1। इनकम है, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनकम इज Y1 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R1। अब इसमें क्या है, देयर इज इक्विलिब्रियम इन डोमेस्टिक मार्केट but not in foreign market, and this equilibrium lies below this BOP line that shows deficit। अब इस डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट एनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो दोनों की जो इफेक्टिवनेस है वो हम अब चेक करते हैं। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से क्या होगा और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से क्या होगा। इफ गवर्नमेंट अडॉप्ट्स कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी,
अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करे तो उसमें जो IS है, IS लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम IS1 टू IS0। अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करें तो जो IS है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, फ्रॉम IS1 टू IS0, और अपने पास एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा एट दिस पॉइंट। सपोज इट इज E0, this is income, this is rate of interest, income suppose Y0, rate of interest R0। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई और जो IS है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई। अब इसमें क्या हुआ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ E पॉइंट का गैप है, जैसे यहाँ से लेके 1 से लेके 3 पॉइंट तक है, 1 1 2 3 तक है, तो यहाँ पर आके और भी ज़्यादा हो गया, 3.2 3.3 के आसपास हो गया, 1 2 3 3.1 2 3। तो इसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है इट इंक्रीजेस फर्दर, और ज़्यादा बढ़ गया। उससे भी ज़्यादा लॉस क्या हुआ, जो इनकम है, इनकम कम हो गई, Y1 टू Y0, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गई, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आने से BOP का डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ गया और सिचुएशन डिटीरियोरेट हो गई, खराब हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, कैपिटल का आउटफ्लो बढ़ गया। कैपिटल का आउटफ्लो बढ़ने से जो डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे ही अगर हम करंट अकाउंट में देखें, इनकम कम हो गई, इनकम कम होने से इंपोर्ट्स कम हो गए, पर इससे तो इंपोर्ट कम होने से डेफिसिट नहीं बढ़ता, इंपोर्ट कम होने से तो डेफिसिट कम होता है। पर अगर अब आप देखो, कैपिटल अकाउंट में अगर हम देखें तो डेफिसिट बढ़ गया, करंट अकाउंट में अगर हम देखें तो डेफिसिट कम हो गया, बट ओवरऑल जो डेफिसिट है वो बढ़ गया। क्योंकि अगर यहाँ से हमने देखा था 3 पॉइंट है, 3.1 2 3.3 ऐसा कुछ है, तो अगर डेफिसिट बढ़ गया इट मीन्स जो कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट बढ़ा दैट इज ग्रेटर देन द रिडक्शन इन डेफिसिट थ्रू करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट ने जितना डेफिसिट कम किया, कैपिटल अकाउंट ने उससे ज़्यादा डेफिसिट बढ़ा दिया, इसलिए जो नेट है वो डेफिसिट बढ़ गया। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट वेदर ए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जो हमने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को और ख़राब करेगी या ठीक करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ BOP लाइन।
ये बीओपी लाइन के स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये बीओपी लाइन है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, यहाँ पे पॉइंट रख के अगर हम इसको ऐसे रोटेट करें बीओपी लाइन को, यहाँ पे आ जाए बीओपी लाइन। सपोज जो बीओपी लाइन है वो ये हो, सपोज इट इज बीओपी डैश। तो ये लाइन हो बीओपी डैश। तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर जनरल इक्विलिब्रियम जो है यहाँ से यहाँ तक आ गया। बट ये जो जनरल इक्विलिब्रियम है बन तो गया, बट दिस इज एट लो लेवल ऑफ इनकम एंड लो लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने क्या देखा, अगर बीओपी की स्लोप बीओपी डैश है, बीओपी डैश वाली लाइन है, then government can correct balance of payment deficit with the help of contractionary fiscal policy, but this result is not very fruitful क्योंकि इनकम कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। Then government prefers other option, that is increase in fiscal policy, or you can say expansionary fiscal policy। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से क्या होगा, जो आईएस है, आईएस विल शिफ्ट rightwards like this। From IS1 to IS2, and new equilibrium or general equilibrium will be at E2, और इनकम हो जाएगी Y2, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा R2। तो इसमें क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, कैपिटल इनफ्लो भी बढ़ गया, कैपिटल आउटफ्लो कम हो गया। तो इनकम बढ़ने से इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। बट जो कैपिटल इनफ्लो है वो ज़्यादा होने से, जो इंपोर्ट्स ज़्यादा होने से डेफिसिट हुआ वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाएगा। ये ज़्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि इसने इनकम को बढ़ा दिया। तो हमने क्या देखा, if BOP has a higher slope and LM is curvilinear, अगर BOP की स्लोप ज़्यादा हो, जैसे डैश वाली लाइन है इसकी स्लोप ज़्यादा है और LM कर्व शेप है, then there will be two equilibrium points E0 and E2। तो दो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गए, E0 भी बन गया, E2 भी बन गया BOP डैश के हिसाब से। E0 can be achieved through contractionary fiscal policy
and E2 can be achieved through expansionary fiscal policy. तो ये जो पॉइंट है E1 से E0 ये हमने अपनाया थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, IS कम हो गई। ये हमने अपनाया थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज हाउएवर ए क्लियर चॉइस। तो अगर हम इन दोनों में से देखें तो जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है इट इज़ मच बेटर बिकॉज इट गिव्स हायर लेवल ऑफ इनकम। तो इसमें हमें इनकम लेवल ज़्यादा दिया है, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। तो इसका कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं, पीओपी डेफिसिट अगर है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हमने यूज़ करनी है। तो जैसे हमने पहले एक कंक्लूज़न बनाया था, डेफिसिट को दूर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी और फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी। तो ये हमारे दो बेसिक पॉइंट हैं, इनको हम नेक्स्ट हेडिंग से पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। इफ देयर इज डेफिसिट तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज कॉन्ट्रैक्शनरी और जो फिस्कल पॉलिसी है इट इज एक्सपेंशनरी। इसके बेस पे अब हम एक्सप्लेन करेंगे our next heading, mix of both policies, monetary policy and fiscal policy mix to adjust balance of payments। अब इस डायग्राम को भी हम दोबारा ड्रॉ करके समझते हैं। Suppose this is income, rate of interest। अब इसमें देखो IS and LM both are changing because we are using mixed policies। Monetary policy will change LM, will shift LM curve, and fiscal policy will shift IS curve। Now suppose जो हमारे पास पहले LM है, फर्स्ट LM, suppose LM is LM3। सपोज ये हमारे पास LM है एंड जो IS है, सपोज IS is IS1 and equilibrium is at this point, suppose it is E, this is income and
rate of interest, suppose it is y1, and rate of interest is suppose r1, and जो BOP है suppose BOP is like this. सपोज ये है हमारा BOP फंक्शन, if we check here there is domestic equilibrium at E point but no foreign equilibrium. फॉरेन मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट में इक्विलिब्रियम है, and this point lies below the BOP. It means this point shows deficit. तो इस डेफिसिट को हमने ठीक करना है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी और मिक्स दोनों का. तो अगर हम एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखें कि डेफिसिट हमारे पास है, तो डेफिसिट को ठीक करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हम अपनाते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी, और जो फिस्कल पॉलिसी है वो हम अपनाते हैं एक्सपेंशनरी. तो इसके बेस पे हम चलेंगे. फर्स्ट सपोज वी अडॉप्ट ओनली कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. सपोज हम पहले ये यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. तो इसमें क्या होगा, जो LM है, LM will shift leftwards suppose it is LM1, जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो बन गया at point F, and this is income and rate of interest y0 and r2. इनकम कम हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया. This is one method to correct balance of payments, but this method generates अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो इनकम है वो कम हो गई. सपोज वी अडॉप्ट ओनली फिस्कल पॉलिसी. अगर हम सिर्फ फिस्कल पॉलिसी यूज़ करें तो क्या होगा, LM विल शिफ्ट राइटवर्ड्स. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हम यूज़ करेंगे तो जो IS जो है, IS will shift rightwards like this. It is suppose IS3. तो इसमें क्या हुआ, जो IS है, IS shift rightwards with the help of expansionary fiscal policy, और जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो बन गया सपोज एट पॉइंट H, वेयर इनकम इज दिस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस. सपोज एट y3 और R4. तो इसमें क्या हुआ, जो इनकम है, इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम y1 टू y3 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट rises from R1 to R4.
अब जब इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया, लोगों की इनकम इतनी बढ़ गई, चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, दिस विल जनरेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकॉनमी। इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन सकता है। इसलिए अकेली फिस्कल पॉलिसी या अकेली मॉनेटरी पॉलिसी से अगर हम इसको ठीक करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक तो हो गया एट एफ एंड एच, बट देर मे बी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स एट एफ, देर मे बी इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स एट एच। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपनाती है बोथ पॉलिसीज, दोनों का मिक्स। तो दोनों पॉलिसी अपनाने से क्या होगा, ये वाला जो एरिया है इसमें इक्विलिब्रियम बन जाएगा, थोड़ा एल एम लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा आई एस राइट शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एल एम सपोज with the help of contractionary monetary policy, suppose LM थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हो गया, suppose it is LM2, और with the help of expansionary monetary policy थोड़ा IS राइट शिफ्ट हो गया, suppose IS2, एंड जो न्यू इक्विलिब्रियम बना वो ये बन गया एट पॉइंट G at income this and this rate of interest, at income Y2 and rate of interest R3। तो ये हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम है, फाइनल जो इक्विलिब्रियम है, this point G at Y2 and at R3, ये हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम बन गया बाय अडॉप्टिंग बोथ पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो अब जैसे हम Y1 से देखें, Y1 से, क्योंकि जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था वो था Y1, ये हमारा पहला पॉइंट था, Y1 एंड R1 ई पॉइंट। तो अगर हम इस पॉइंट से देखें Y1 से, इनकम भी बढ़ गई थोड़ी सी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आया, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं आया, इनकम भी कम नहीं हुई। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R1 से R3 तक गया, R1 से R4 तक नहीं गया। तो इसने हाइपर इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट किया, सम इन्फ्लेशन तो होता ही है, सम प्राइस राइज, दिस इज इनएविटेबल, ये तो होना ही है फॉर द मोटिवेशन इन द इकोनॉमी। तो ऐसे बाय यूजिंग मिक्स ऑफ बोथ पॉलिसीज, गवर्नमेंट करेक्ट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट situation or foreign market equilibrium। A policy mix approach is therefore preferable to other options available to the country। इसलिए जो मिक्स पॉलिसी है वो अपनाना ज़्यादा बेटर है। However, the use of monetary fiscal mix is not so simple because of the following reasons। तो अब जैसे हमने ये यूज़ कर ली मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इतना भी इजी नहीं है। क्यों?
because of the lack of perfect knowledge and accurate data on IS, LM, SI, Y, POP, employment, etc. इन चीज़ों का हमारे पास एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर इतनी ज़्यादा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती तो इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता. एंड देयर इज डिसएग्रीमेंट आल्सो अमंग इकोनॉमिस्ट्स. कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है, मॉनेटरी है, फिस्कल पॉलिसी है, विच पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव. दिस इज सम डिसएग्रीमेंट अमंग इकोनॉमिस्ट्स आल्सो. क्योंकि जैसे हमने देखा कि हम इसको फिस्कल पॉलिसी से भी ठीक कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से भी ठीक कर सकते हैं. तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम से हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपकी कंट्री में क्या चीज़ की प्रायोरिटी है. अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को लेके इशू है, इन्फ्लेशन को लेके इशू है, तो उस हिसाब से थोड़ा डिसएग्रीमेंट बन जाता है. तो एक हमारा कंक्लूज़न तो कॉमन है कि अगर डेफिसिट है, जैसे हमने अभी बनाया, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी एंड फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी. Now we will check relative effectiveness of monetary and fiscal policies under different situations in IS, LM, BOP framework. तो दोनों में कौन सी पॉलिसीज ज़्यादा इफेक्टिव हैं. The nature and classification of problems involved in policy choice is given below. तो ये हमने बड़ी सिंपल डायग्राम बनाई हुई है. दिस इज नॉट ISLM बट दिस इज बेस्ड ऑन ISLM, बेस्ड ऑन ISLM BOP. Income and rate of interest. Suppose this is internal balance line. Internal balance line means at each and every point of this line IS equals to LM, and this line suppose shows external balance. At each and every point of this line there is balance of payment equilibrium, and you know above this line above this BOP line there is surplus, and below this BOP line there is deficit. एक तो ये पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि BOP लाइन के ऊपर है सरप्लस, BOP लाइन के नीचे है डेफिसिट. सिमिलरली अगर हम इसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनकम मान के चलें, बिफोर दिस ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट. इससे पहले, एंड बियॉन्ड दिस ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज इन्फ्लेशन. तो इस हिसाब से हमने ये ड्रॉ किया है. Internal balance IB, this is internal balance, shows IS equals to LM at each point. Money market is equal to product market equilibrium. However, the slope of IB may be vertical, it may be this shape, positively sloped, negatively sloped, horizontal, less slope, more slope. कोई भी slope इसकी हो सकती है.
डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ISLM पॉइंट्स। तो ये ISLM के इक्विलिब्रियम के बेस पे इसकी जो स्लोप है, IB की जो शेप है, वो ज़रूरी नहीं वर्टिकल ही हो, कोई भी हो सकती है। हमने इसको इजी बनाने के लिए 4 पार्ट्स को वर्टिकल ले लिया, वी अज्यूम्ड इट वर्टिकल। फ्रॉम पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम पॉलिसी के हिसाब से देखें फिस्कल मॉनेटरी, जोन्स 1 एंड 3, तो इसके हमने 4 जोन बनाए हैं, 1 2 3 4। जो जोन 1 है और 3 है, these are the dilemma zones, because in any one zone, अगर हम इन दोनों में कोई भी देखें 1 एंड 3 डिफरेंट, तो अगर हम इसको यहाँ लिख लें, दिस इज डायलेमा जोन, दिस इज डायलेमा जोन। जो पॉइंट्स हैं A, B और C, D, जो भी पॉइंट्स हैं, नो यूनिफॉर्म पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड। तो इनमें हम यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं अडॉप्ट कर सकते, मिक्स कोई भी अपन यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्लियर है 2 एंड 4 में, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन है, सरप्लस है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है और डेफिसिट है। देखो व्हाट इज द मंडेल सजेशन, द मंडेलियन पॉलिसी असाइनमेंट। In 1960s, Mundell developed a principle of effective market classification and suggested a rule for efficiency and stability of policy measures following Tinvergen's rule। तो मंडेल ने टिनवर्जन्स रूल के बेस पे एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव मार्केट क्लासिफिकेशन। Tinvergen rule क्या है? A policy instrument should be assigned a target which it can hit relatively most effectively। जैसे हमारे पास 2 टारगेट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है या इन्फ्लेशन है, दूसरी साइड BOP डेफिसिट है या सरप्लस है। तो कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए? वो पॉलिसी अपनानी चाहिए जिससे जो हमारा जो टारगेट है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और डेफिसिट सरप्लस, जिस पॉलिसी से जो टारगेट ज़्यादा बेटर हम अचीव कर सकें, वो पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए। बड़ा ही सिंपल रूल है, दैट इज़ द टिनवर्जन रूल। गोइंग बाय दिस रूल, अगर हम इस रूल के हिसाब से चलें, monetary policy or fiscal policy should be assigned a task which it can perform most successfully in achieving internal and external balance। तो हमें कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, मॉनेटरी और फिस्कल, जिस पॉलिसी से हमारा जो टारगेट है वो इंटरनल बैलेंस का और एक्सटर्नल बैलेंस का वो ज़्यादा अच्छा पूरा हो सके। और मिक्स चाहिए तो मिक्स, एंड देयर मिक्स शुड बी यूज्ड, इस हिसाब से मिक्स यूज करना चाहिए, दैट देयर पॉजिटिव इफेक्ट्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड नेगेटिव इफेक्ट्स आर मिनिमाइज्ड। तो जो पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा बढ़िया काम कर सकें। तो ये कुछ हमने मंडेल ने ऑन द बेसिस ऑफ टिनवर्जन रूल इफेक्टिवनेस दिखाई है। फिस्कल पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए फॉर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट है तो एक्सपेंशनरी, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हम इंटरनल बैलेंस के इस साइड पे हैं। तो जब हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे तो हम राइट साइड चल पड़ेंगे यहाँ से।
एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ जाएगी। तो ये नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। फिस्कल पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट है तो एक्सपेंशनरी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट और इनकम बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन अगर है तो कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें फिर हमें अपनाना चाहिए कॉन्ट्रैक्शनरी, क्योंकि इसमें फिर इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो सकते हैं, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। एंड अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो जो सरप्लस है तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी, और अगर डेफिसिट है तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी। मतलब बीओपी के हिसाब से अगर हम चलें, एक्सटर्नल बैलेंस के हिसाब से तो मॉनेटरी पॉलिसी, अगर हम इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के हिसाब से चलें तो फिस्कल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। दिस इज द डिटेल ऑफ दैट टेबल। तो अभी हमने उस टेबल में क्या स्टडी किया, अनएम्प्लॉयमेंट है, या इन्फ्लेशन है, तो इसके लिए फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है इसके लिए फिस्कल पॉलिसी। और कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट अगर है जैसे यहाँ पे है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए फिस्कल पॉलिसी है एक्सपेंशनरी। और अगर सरप्लस है जैसे ये सरप्लस है, सरप्लस को दूर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज एक्सपेंशनरी। तो ये ब्लू वाला ब्लू के साथ लिंक हो गया। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी, सरप्लस है तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी, सरप्लस है तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी, अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी। ये इसके बेस पे हो गया। अगर इन्फ्लेशन है तो फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी, रेड वाला रेड के साथ हो गया। और अगर डेफिसिट है तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी। इसको आप इस हिसाब से चलें। पेंसिल वाला पेंसिल वाले के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशनरी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशनरी। ब्लू पेन वाला ब्लू पेन के साथ, सरप्लस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सरप्लस एक्सपेंशनरी। रेड वाला रेड के साथ, इन्फ्लेशन फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी, इन्फ्लेशन कॉन्ट्रैक्शनरी। डेफिसिट ब्लैक पेन वाला ब्लैक पेन के साथ, डेफिसिट मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी, डेफिसिट मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी। तो जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उस तरह की पॉलिसी इसमें यूज की जा सकती है, और उसके फिर ये रीजन लिखे हुए हैं। These are very simple reasons. We all explained in the diagrams. This is the basic detail
this is also very important detail by using fiscal monetary policy mix. There are some weaknesses of Mundell-Fleming model. अब हम वो स्टडी करते हैं. The Mundell solution is unstable and impractical because of the following problems. First problem, Mundellian approach assumes that policymakers are fully aware of internal balance, external balance, zone और the points कि हम BOP लाइन से कितना ऊपर हैं नीचे हैं. तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को ये सब कुछ क्लियर है कि इंटरनल बैलेंस कहाँ पर है, एक्सटर्नल बैलेंस कहाँ पर है, कौन से हम पॉइंट जोन में हैं और उस जोन में हम कहाँ पर हैं. तो इतना कुछ पता होना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेसेसरी डेटा. द मॉनेटरी फिस्कल मिक्स इज बेस्ड ऑन सम प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप between interest rate and capital flows. तो जो मॉनेटरी फिस्कल मिक्स है, तो जैसे हमने इस टेबल में देखा, जैसे इन्होंने लिखा है कि हम ये पॉलिसी अपनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसके साथ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसके साथ ऐसे हो जाएगा, इसके साथ ऐसे हो जाएगा. तो these are some predictable relationships, but the problem is this relationship may be disturbed after the implementation of the policy. तो अगर ये रिलेशन डिस्टर्ब हो गया तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा. Mundelian approach does not provide a true adjustment principle mechanism. तो ये true adjustment mechanism नहीं बताते. This approach considers capital flows as autonomous. तो कैपिटल फ्लोज उनके हिसाब से आर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते रहते हैं. वेयर एज इन रियलिटी ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कैपिटल फ्लोज इज अकोमोडेटिंग नॉट ऑटोनमस. तो कैपिटल फ्लोज ऑटोनमस नहीं होते बल्कि कैपिटल फ्लोज को मेंटेन किया जाता है. द अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो हम उसको मेंटेन करते हैं, देन गवर्नमेंट डज नॉट चेक द रेट ऑफ इंटरेस्ट. Last point, Mundelian approach assumes that other countries are not affected by monetary fiscal mix adopted by a country. तो ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि एक कंट्री का इफेक्ट दूसरी कंट्री के ऊपर पड़ता ही है. In reality, however, a great deal of conflict arises between the nations. जैसे US चाइना में ट्रेड वॉर टाइप सिचुएशंस होती हैं अक्सर. Thus, finding an appropriate monetary fiscal mix compatible with that of other countries is rather an impossible task. तो अगर हम अपने इंटरनल बैलेंस बनाने के हिसाब से दूसरी कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे हम जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, दैट इज मोर जनरल, तो वो कुछ इम्पॉसिबल टास्क है. इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया. And for any further reading, you must go through this book, Macroeconomics Theory and Policy by D.N. Dwivedi. This is very useful book, published by Tata McGraw-Hill. तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप ज़रूर इसको पढ़िए. Not for only this topic, for whole macroeconomics. Thank you.